So now again we are discussing about the half range series, whatever we have discussed in the last lecture. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So the question here is find the Fourier sine series, or you can say Fourier half range sine series for the function f of x is equal to be e power ax for 0 is less than x less than 5. Yes. So in this case, we have to be find the Fourier half range sine series. So we have a f of x which is equal to be e power ax is equal to be the summation of the bn into the sine of n pi x over the pi. We get the sine of a nx, and the value of bn is equal to be, yes, 2 over pi integral 0 to pi f of x into the sine of nx. Now here the f of x means the e power ax. So either you can go with the Euler formula, or if you remember the formula of e power ax into sine of nx, you can apply the formula directly. So I'm writing up the formula directly. So you have, whenever you have an integral e power ax into the sine of a bx, it is equal to be e power ax upon the a square plus b square into a sine bx minus b times cosine bx. You can directly substitute this formula over this integral and get the required solution out there. So we get this is equal to be 2 over pi into e power the ax upon the a square plus n square into, we have a times the sine of nx minus n times cosine of nx, and apply the limits from 0 to pi. Apply the limits from 0 to pi we have. So क्या आ जाएगा? We get this becomes equal to be 2 over pi into the, पहले pi substitute कर देते हैं, बाद में 0 substitute कर देंगे. So we have e power a pi upon a square plus n square into a sine n pi minus n times cosine of n pi. Okay, and then we will substitute the value of x as a 0. So we have a e power 0 is 1, sine of a 0 is 0, cosine 0 is 1. So we get the minus of a minus n, we get a plus n upon the a square plus n square. Yeah, and it out. Substitute the values. Now here we have n upon the, we can get the formation to be here, sine of a n pi. We have substitute the value of a cos of a n pi. तो cos of n pi is minus 1 power the n, है ना, तो n कॉमन निकल आएगा यहाँ से. So we get 2 over pi into the n upon the a square plus n square
into 1 plus 1 minus -1 power the n into e power a times pi out there. So we get the value of the bn. Now you can calculate the value of b1, b2, b3 and so on, and substitute in the given formula of the function e power ax is being approximated as a summation of a bn into the sine of nx, where n is equal to be 1 to infinity. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, you can get the required solution. Yeah. So we get here is 2 over pi को हम बाहर निकाल लेंगे. So 2 over pi into the summation of n into the 1 minus of a -1 power the n e power a pi upon the a square plus n square into sine of nx. Yes. Any doubt? Any query? Any query? No, sir. Okay. If we have to go with the, अगर मैं simply बोलूं sin cube x की sin series निकालिए, जो वैसे जनरल इक्वेशन पूछ लेते हैं. What is the अपना Fourier series of a sin cube x? How you can be evaluate this one in any of the interval -L2L या 0 to pi whatever. तो इस तरह के जब भी फंक्शन आ जाए ना, अगर हम sin cube का फार्मूला लगा लें, we know that the sin 3x is equal to be 3 sin x minus the 4 sin cube x out there. From that formula you can find the value of a sin series. तो वहां से हम sin series जो है निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर मैं सिंपली पूछूं कि what is the sin series of a sin x, तो इसकी sin series या Fourier series की अगर मैं बात करूं, तो ये फंक्शन अपने आप में ही एक Fourier series है sin x. तो sin x की जो Fourier सीरीज की हम बात करेंगे तो वो sin x ही रहेगा. अगर आप इसको निकालना चाहें 0 to pi या -pi to pi तो आप निकाल के चेकआउट कर सकते हैं, तो वो वही फंक्शन ही निकल के सामने आएगा. क्लियर? एनी क्वेरी? यस सर. sin 3x की Fourier सीरीज वो कैसे निकालेंगे? sin 3x की अगर आप निकालना चाहें, you can go with the sin 3x, फिर आपको फार्मूला जो फॉर्मेशन में है वो निकालेंगे इसका. ठीक है. मैंने इसका बताया sin क्यूब का, अगर sin क्यूब की फॉर्मेशन आ जाती है तो आप sin, जैसे sin 3x का फार्मूला है, वो sin 3x के फार्मूले को एक्सपेंड कर देंगे तो वहां से sin क्यूब x की Fourier सीरीज निकलेगी. तो sin 3x की निकालने के लिए अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरवल व्हाटएवर वी हैव. तो निकालने के लिए वही फॉर्मेशन है कि जो इंटरवल हमारे पास है. ठीक है. जैसे मैंने अभी बोला कि sin x की जो मैं अगर इंटरवल में बात करूं 0 से pi, फिर तो यही रहेगा. अगर मैं इंटरवल चेंज कर देता हूं देन डेफिनेटली सम इफेक्ट विल बी देयर. ठीक है. अगर मैं इसमें इंटरवल, क्योंकि आपको पता है ना इसका पीरियोडिक फंक्शन जो है वो इस 3 के मल्टीपल के ऊपर डिपेंड, क्योंकि sin x का जो पीरियड है वो क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin x? हां 2 pi. हां. और sin 3x का पीरियड क्या होगा? 2 pi by 3. 2 pi by 3. Yes, accordingly the series will be changed up for this one. अगर तो मैं 0 से -pi से पाई ले रहा हूं तो फिर तो ये इसका पीरियड वही, इसका फंक्शन जो है वो साइन सीरीज में ही रहेगा, sin x का ही. अगर मैं अकॉर्डिंगली पीरियड चेंज करता हूं डेफिनेटली सम ऑफ द इफेक्ट विल बी देयर, है ना. तो अकॉर्डिंगली शुड बी डिस्कस ऑन दैट. क्लियर? यस सर. या सो यहाँ पे हम जो है हमने सारे टॉपिक्स जो है साइन सीरीज के, ये Fourier सीरीज की डिस्कशन मैंने कर ली है. अभी मैं इसकी एप्लीकेशन पार्ट की तरफ आता हूँ. So now today we are going to discuss the application part of this Fourier series. ठीक है. बाकी न्यूमेरिकल्स जो है आप बुक्स वगैरह से देखिएगा कि बाकी सिमिलर और सेम पैटर्न यू कैन बी फाइंड आउट द Fourier series. आपने वही निकालने हैं जो सीरीज में a नोट a and b वगैरह है. So now I'm discussing about the application part. जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि here अगर मैं एप्लीकेशन की पार्ट की बात करूं तो
तो हमारे पास अगर हीट इक्वेशन या वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालना है तो उसमें फूरियर सीरीज जो है हेल्प करती है। अब उसमें जो हमने डिस्कशन करनी है वो हमने डिस्कशन करनी है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के सॉल्यूशन में या वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में। अब कैसे हेल्प करती है, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन करेंगे कि हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना कैसे है। तो सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो वी विल यूज अप अ वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक। तो हम वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक से सबसे पहले तो फॉर्मेशन बनाएंगे। अब वहां पे आगे जाके द फूरियर सीरीज विल हेल्प अस टू जस्टिफाई द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे जस्टिफाई करेगी, कैसे निकालेगी, वो विल डिस्कस अप दैट पार्ट। So now I am discussing about the application part. ठीक है, तो सबसे पहले we will discuss about the heat equation. देखिए हम अब मॉडलिंग डिस्कस नहीं करेंगे कि हीट इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, हम सिर्फ अब उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए हीट इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई हीट इक्वेशन आती है या वेव इक्वेशन आती है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्कसिंग अबाउट हीट इक्वेशन। अब हीट इक्वेशन के अंदर क्या हो क्या रहा है, अब देखिए कि हीट कैसे फ्लो करती है। सबसे पहले तो फिनोमेना फिनोमेना जो फिजिक्स वाला है फिनोमेना तो वही रहेगा, या केमिस्ट्री में जो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है, क्या है, यू हैव ए रोड, है ना, आपके पास कोई एक रोड है। ठीक है, इट हैज सम इनिशियल पोजीशन। ठीक है, से दैट दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, and taken up along x-axis out there. Suppose this is a conducting material is there. ठीक है, अब अगर आपके पास ये मटेरियल है तो डेफिनेटली वी कैन कंसीडर अब दिस फंक्शन। अब ये क्या हो रहा है कि अब हम इसको ले रहे हैं एज अ फंक्शन। अब एज ए फंक्शन में वी विल कंसीडर द टू थिंग्स। एक तो वी कैन कंसीडर अप the required this distance, कि ये मटेरियल का जो रोड का जो लेंथ है वो कितनी है। दूसरा, अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि टेम्परेचर, अगर हम बात करें कि दोनों एंड्स पे टेम्परेचर जो है हमने जनरेट कर रखा है, या सपोज मैं इस एंड को हीट कर रहा हूं। अगर मैं इस एंड को हीट कर रहा हूं तो वी नो दैट कि ड्यू टू द थर्मल डिस्टर्बेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स ये एंड भी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। द पार्टिकल्स विल बी मूव्ड और through the thermal vibrations they will disturb the other particles, and due to which the heat will be moving to the other end. But comparatively इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखूं तो ये पार्ट ज्यादा गर्म है और ये पार्ट कम गर्म है ना। तो इसका मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन आल्सो टाइम, और टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर मैंने रेस किया किसी टेम्परेचर पे, तो एट ए टाइम जीरो क्या होगा, एट ए टाइम ए क्या होगा, वी हैव टू बी मेंशन अप ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे एक हम फॉर्मेशन ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं टेम्परेचर का। ठीक है, विच इज द यूएक्सटी। ठीक है, अब u ऑफ xt का मतलब है, एक तो ये हमें बता रहा है कि एट ए पोजीशन x और एट ए टाइम t। ठीक है, so again I'm going to consider out. So let us consider flow of a heat by conduction, conducting in a thin
metallic bar, a rod, say OA, taken along x-axis, क्योंकि मैं वन डायमेंशनल ले रहा हूं तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अराउंड ही डिस्कशन करेंगे। अगर मैं वाई एक्सिस भी साथ में कंसीडर आउट कर लेता हूं, एंड दैट बिकम्स अ हीट इक्वेशन इन टू डायमेंशनल। ओके, so we consider this one, and now we have a temperature function uxt of the bar at any point, say I consider any point p out here, अगर मैं उसे कि ये तो लेंथ ले रहा हूं सपोज, तो एनी पॉइंट p पे मैं ये बात कर लेता हूं से एनी पॉइंट p, at any point p is a function of, here the temperature, you can say this is the temperature, is a function of x and t. Now suppose that this bar is raised, or you can say the heated to an assigned temperature at time t, and then allowed to cool down. Okay, now if we have to find uxt at any point x and at any time t greater than 0, then it is governed by the second order partial differential equation. Sir, we have to find uxt at any point x or p. So p आएगा कि x आएगा वहाँ पर? Any point x, x एक्चुअली क्या है कि आपके पास एक रोड है, अब रोड को आपने गर्म किया, थर्मल डिस्टर्बेंसेस पैदा हुई, अब आपने क्या चेक करना है कि किसी पोजीशन पे कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्म हुई है वो। क्योंकि आप देखिए, अगर आप कोई रोड को किसी कढ़ाई में भी डालते हैं उसको, या हीट अप करते हैं एक एंड पे, तो धीरे धीरे जहां से आपने पकड़ी होती है वो एंड भी गर्म होना शुरू हो जाता है ना? तो Yes. विद रिस्पेक्ट टू भी डिस्टेंस कितना गर्म हो रहा है वो, हमने वो निकालना है बेसिकली। ठीक है, एट एनी टाइम टी, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ही वो गर्म होना शुरू, ज्यादा गर्म होगा ना। कि सपोज मैंने अभी गर्म किया, शुरू किया एक एंड को, आफ्टर 2 मिनट कितना गर्म हुआ, आफ्टर 5 मिनट्स कितना गर्म हुआ, आफ्टर 20 मिनट्स कितना गर्म हुआ, दैट वी हैव टू बी काउंटेड अप ना। सर पॉइंट वाला x हम या मतलब एट एनी पॉइंट, देखिए क्या हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है, सपोज आउट, फिर वापस उसी डायग्राम पे आते हैं जो भी मैंने डिस्कशन की है। सपोज आपके पास ये जो लेंथ ऑफ द मेटालिक रोड है ये L है, सपोज ये L है, ये पॉइंट P है, सपोज इस पॉइंट पे आपने डिस्टेंस लिया x यहाँ पे। okay, अब sir. आफ्टर टाइम t, क्योंकि थर्मल डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे आपने इस एंड को गर्म किया है, अब थर्मल डिस्टर्बेंसेस पैदा होंगी तो थर्मल डिस्टर्बेंसेस से ये हीट होना शुरू होगा। तो आफ्टर टाइम t ये पॉइंट p कितना गर्म है, कितना टेम्परेचर है इसका, तो दैट वी हैव टू बी कैलकुलेटेड। तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय दिस फंक्शन।
ओके सर, ओके ओके, गॉट इट। तो पर उसकी जो इक्वेशन क्या बनेगी वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं वो फॉर्मेशन में मॉडलिंग नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कैसे फॉर्म होगी है, तो मैं सीधा डायरेक्टली वो इक्वेशन जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो इक्वेशन क्या होगी, दिस इज द इक्वेशन, कर्ल स्क्वायर u by कर्ल x स्क्वायर is equal to v 1 by k into कर्ल u by कर्ल t। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। दिस इज अवर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जिसका हमें सॉल्यूशन जो है वो बात करनी है। इसको वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन कह देते हैं, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है, so we have to be discuss the solution of this equation, this partial differential equation। अब यहाँ पे जो ये k है, ये जो मैंने k की बात करी है ये वाला, it depends upon many of the factors, काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, क्योंकि ये है डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि कंडक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा बेसिकली डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन जो है इट्स अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बार, मेटालिक बार जो भी हम ले रहे हैं, उसकी जो डेंसिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। So that again many factors are there through which this case being dependent upon। तो हम एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, not in detail that you already gone through the in the sum of physics out there। तो ये अगर मैं k की बात करूं, ये जो मैंने k लिखा है यहाँ पे, तो it depends upon the many of the terms, like it is equal to be, अगर मैं बात करूं तो it depends upon the thermal conductivity, this capital K, it depends upon the specific heat, it depends upon the density। ठीक है, and for the this is called as a diffusivity of the material of the required bar or rod, whatever we have considered। And K, capital K represents the, अगर मैं इस capital K की बात करूं, तो this represents the thermal conductivity of material of bar of the rod, you can say, and this sigma is representing a specific heat। And you already discussed up the definitions of specific heat, thermal conductivity, and so on in the physics out there। And this rho represents the density, or you can say the mass of a bar per unit volume। Huh? So this is a general representation of a heat equation। तो अगर मैं heat equation को देखूं तो I have one dimensional heat equation हमारे पास फॉर्म होके आई है, कर्ल स्क्वायर u by कर्ल x स्क्वायर is equal to be 1 by k into कर्ल u by कर्ल t। अगर मैं ऐसे टू डायमेंशनल में देखूं तो ये क्या बोले, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ x एक्सिस में ही देखा है, तो in that case I also consider the x axis and the y axis। तो ये बन जाएगा कर्ल स्क्वायर u by कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u by कर्ल y स्क्वायर is equal to be 1 by k into कर्ल u by कर्ल t। Can you just describe a bit? हाँ प्लीज। सर ऊपर का पार्ट देखना। ठीक है, और करूं? Is it okay? नहीं सर, एक मिनट। Yes sir। So we have one dimensional heat equation is this one जो अभी हमने लिखी है, and then two dimensional heat equation which depends upon x as well as the y। इसी तरह से three dimensional heat equation। तो one dimensional heat equation means I can talk about a metallic bar, two dimensional heat equation means I can talk about a metallic sheet, three dimensional heat equation means I can talk about a surface, metallic surface। ठीक है, in three dimensions। So अगर मैं three dimensional heat equation की बात करूं,
So I can have a curl square u by curl x square plus curl square u by curl y square plus curl square u by curl z square is equal to be 1 by k into curl u by कर्ल t। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के सामने आ रही है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं मेटालिक बार की। हमारे सिलेबस में जो हमने डिस्कशन करनी है वो सिर्फ यही डिस्कशन करनी है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन की बात करूं तो हियर आई कैन टॉक अबाउट अ मेटालिक शीट। तो अगर मैं थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन की डिस्कशन करना चाहूं तो आई हैव टू बी टॉक अबाउट अ मेटालिक सरफेस। तो सो द हीट इक्वेशन अगर आप देखिए ना, आप यूज करते हैं इंडक्शन प्लेट्स, है ना, इंडक्शन प्लेट्स यू आर यूजिंग, उसके सेंटर में लिखा होता है इट मे बी वेरी हॉट, है ना। तो इट आल्सो वी कैन कैलकुलेट अप, देखिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे जहां पे हम ये डिस्कशन भी करेंगे कि अगर सर्कुलर सरफेस है तो कैसे वी कैन टॉक अबाउट कि कहां पे कितना गर्म होगा, कितना टेंपरेचर होगा। तो वी कैन टॉक अबाउट ऑल दीस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहले तो क्वेश्चन करेंगे कि कैसे सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं वापस आता हूं। अब देखिए इसको जनरल अगर फॉर्म में लिखा जाए तो इट कैन आल्सो बी टॉक अबाउट द ऑपरेटर, जो हमने ऑलरेडी डिफरेंशियल ऑपरेटर जो पढ़े हैं, तो वी कैन आल्सो बी राइट अप इन टर्म्स ऑफ ए दिस कैन बी रिटन एज अ डेल स्क्वायर, ठीक है। डेल स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल टू बी 1 by k into curl of u by curl t। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल स्क्वायर यू कैन से दैट इज द कर्ल ऑफ कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल x स्क्वायर, कर्ल प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल y स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल z स्क्वायर इन जनरल, ठीक है। एंड डेल स्क्वायर इज आल्सो नोन एज अ लैप्लाशियन ऑपरेटर, इसको लैप्लाशियन ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसको ऐसे भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। तो डेल स्क्वायर को बोला जाता है लैप्लाशियन ऑपरेटर। और ये डेल स्क्वायर की जो वैल्यू, डेल तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ग्रेडियंट को, है ना। तो ये डेल स्क्वायर जो है इट्स अगेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट इज द डेल डॉट डेल इज आउट, तो व्हिच इज द कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल z स्क्वायर। प्रॉपर्टी यू ऑलरेडी लर्नड अप इन, ठीक है। और समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ convenience, the sake of a convenience to find a solution in some of the books, this small k जो हम k लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको कई बुक्स में एज अ सी स्क्वायर भी लिखा जा रहा है, ठीक है। जस्ट ये क्यों लिखा जा रहा है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ कन्वीनियंस, कि सिंपलिसिटी निकालने के लिए, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से निकल आए, जस्ट फॉर सेक ऑफ दैट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम आउट देयर, ठीक है। अगर आप के भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सी स्क्वायर डाल लेते हैं, कभी काफी सारी बुक्स के अंदर सी स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करते हैं। उन पॉइंट्स को आपने याद आउट रखना है कि किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, एक तो पॉइंट ये हो सकता है कि व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द बार आर केप्ट एट अ जीरो टेंपरेचर, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि एक एंड को जीरो टेंपरेचर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अदर एंड ऑफ द बार इज रेडिएटिंग। और ये तीसरा केस है, ये हो सकता है कि बोथ द एंड्स ऑफ द बार आर इंसुलेटेड। तो ये तीन केस हो सकते हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है हम डिस्कशन की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। फिर देख लीजिए हमने क्या बोला, या तो दोनों एंड्स को जीरो टेम्परेचर पे रखा जाए, ठीक है। दूसरा केस, एक एंड को जीरो टेम्परेचर पे और एक दूसरे एंड को रेडिएटिंग कर रहा हो, या वी कैन से दैट दोनों एंड्स को इंसुलेटेड किया गया है, when the both ends of the bar are insulated. These types of numerical problems are being generally discussed up for the heat equation. अच्छा, उसके पहले कि अब हम हीट इक्वेशन को डिस्कशन करें, कि पहले हम डिस्कशन करते हैं कि हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेशन और मेथड कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सॉल्विंग वन डायमेंशनल heat equation, we will use method of
separation of variables, or you can say this method is also known as a product method. So it is a powerful method for finding a solution of a partial differential equation and is applicable in certain circumstances where you assume that the given partial differential equation can be written up in the form of a product. Okay, so you can say that it is a powerful method for finding solutions of partial differential equation and is applicable in certain circumstances where we assume that solution of given partial differential equation, this PDE, is of the form a function of ax and a function of a y. It will be the product form. ये product form में लिखा है हमने, दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब देखिए, अब मेथोडोलॉजी कैसे सोल्व करेंगे उसे हम. तो see up the methodology how we can solve a given partial differential equation. So the question here is solve. मैं अब एक any arbitrary partial differential equation ले रहा हूं और जिसको मैं सोल्व करूंगा यूजिंग अप दिस प्रोडक्ट मेथड. तो पहले ये प्रोडक्ट मेथड समझिए कि क्या है, फिर उसके बाद हम इसे हीट इक्वेशन के ऊपर लगाएंगे कि हाउ वी कैन सोल्व अप अ हीट इक्वेशन. ओके, क्वेश्चन इज सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. और एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ले लेते हैं. say the curl u by curl x is equal to be 4 times the curl u by curl y. तो बेसिकली z को x और y का प्रोडक्ट, मतलब x का एक फंक्शन और y का फंक्शन का प्रोडक्ट होना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल ठीक. अभी ये देखिए ना, मैं भी समझाता हूँ अभी, जैसे अभी ये स्टार्ट करेंगे ना. अभी यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस u को देखें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये u जो है दो फंक्शन के ऊपर, दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y, है ना. तभी तो आपने ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लगाई. The partial differential equation, your partial differentiation will be applicable only whenever the given function depends upon more than one variable, है ना. तो अब यहाँ पे ये जो है, ये जो u फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, हीट हो सकता है, वेव हो सकता है, कुछ भी डिफरेंट फंक्शन हो सकता है. तो it depends upon the two variables, है ना. And suppose that this condition is being given to you is that u of a 0, y is equal to be 8 into e power minus of a 3y. ठीक है, ये कंडीशन गिवन है. अब देखिए इसको स्टार्ट कैसे करना है सॉल्यूशन को. अब सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है, जैसे मैंने बोला ना कि u डिपेंड्स अपॉन द टू वेरिएबल्स. तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, लेट द गिवन PD has a solution of the form. अब कौन सा फॉर्म, ये वाला जो भी हमने बात की है प्रोडक्ट वाला, कि अब क्योंकि ये जो u फंक्शन है डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल, तो डेफिनेटली इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशन होगी, है ना. तो उन वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशन को हमने ये मान लिया प्रोडक्ट की फॉर्म में, इज अ फंक्शन ऑफ ax एंड a function of y. इज इट क्लियर. तो ये प्रोडक्ट मेथड है. तो सबसे पहले हमने ये मान लिया
कि ये जो फंक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन अ प्रोडक्ट ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ अ y फंक्शन। ठीक है, अब ये जो हमने लिया है इस इक्वेशन को इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? सबसे पहले कर्ल u बाय कर्ल x निकाल लेंगे। यहां से क्या आ जाएगा? अगर मैं कर्ल u बाय कर्ल x निकाल रहा हूं, इसका मतलब है आई हैव टू बी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट ओनली। मुझे इस पार्ट की डिफरेंशिएशन करनी है कीपिंग y कांस्टेंट, है ना। और अगर मैं कर्ल u बाय कर्ल y निकाल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? आई हैव टू बी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेरिएबल y वाला। इसका मतलब मेरे पास आ गया x डैश इनटू द y, यहां पे मेरे पास आ गया x इनटू द y डैश। एनी डाउट? इसका मतलब ये हो गया हमारे पास d ऑफ कैपिटल X बाय d ऑफ स्मॉल x इनटू कैपिटल Y। इसका मतलब ये हो गया कैपिटल X इनटू d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ स्मॉल y। यहाँ पे मैंने अब d लिखा है। कैसे d लिखा? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन वन वेरिएबल ओनली, सो व्हाई आई यूज द लेटर d। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि कर्ल का मतलब है जहां पे हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यूज है गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब कर्ल u बाय कर्ल x आपके पास क्या था? 4 टाइम्स कर्ल u बाय कर्ल y था। सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आ जाएगा? x डैश इनटू y इज इक्वल टू बी 4 टाइम्स x इनटू y डैश। नाउ रीराइट द इक्वेशंस नाउ। अभी क्या करते हैं? सेपरेट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं एंड ट्राई टू बी गेट द फॉर्म्स आउट देयर। तो सेपरेट द वेरिएबल्स नाउ। So we get here is the x dash by x is equal to be 4 times the y dash upon y। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म निकल आई। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे सोल्व करने के लिए, क्योंकि अब यह हमारे पास निकल आया है कि x डैश अपॉन द x और y डैश अपॉन द y, अब ये आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी इक्वल टू बी सम कांस्टेंट। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है। सपोज दैट कांस्टेंट इज k। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के सामने आ गई। x डैश अपॉन द x इज इक्वल टू बी k एंड 4 टाइम्स द y डैश अपॉन द y इज इक्वल टू बी k। ठीक है, तो हमने ये मान के चल लिया कि वी हैव दिस वन इज इक्वल टू बी k। ठीक है, तो अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। तो हमने x और y के सॉल्यूशंस की बात करनी है। ठीक है, तो वी विल सिंपलीफाई दीस टू इक्वेशंस नाउ। तो x डैश अपॉन द x इज इक्वल टू बी k है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बी x। अगर मैं x के साथ इंटीग्रेट करता हूं यहां पे तो क्या आ जाएगा? log ऑफ x इज इक्वल टू बी k टाइम्स x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, से द कांस्टेंट इज c1। नाउ वी गेट द आंसर इज x इज इक्वल टू बी, क्या आ जाएगा? e पावर k times x plus c1 and say that the e power c1 is equal to be capital A। तो x की वैल्यू निकल आई। तो x क्या निकल आया? कैपिटल A into e पावर kx। वियर कैपिटल A को हमने लिख लिया e पावर c1। ओके, सिमिलरली यू कैन गो विद दिस पार्ट। अगर मैं इस पार्ट को सोल्व करता हूं, अगेन डू द इंटीग्रेशन बोथ साइड रिस्पेक्ट टू बी y। तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स log of y is equal to be k times y plus c2। and similarly you can have a log of a y की वैल्यू आ जाएगी या y की वैल्यू आ जाएगी is equal to be e power 1/4 into ky plus c2। so here we have the y is equal to be, so b times the e power the k times y upon 4, where b I have taken up as a e power c2/4। तो हमारे पास बेसिकली x की वैल्यू ये निकल आई, y की वैल्यू ये निकल आई। अब हमने
सोल्यूशन क्या माना था गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? हमने सोल्यूशन माना था कि u of x y is a solution, means u of x y is equal to be x, ये सोल्यूशन माना था गिवन पार्शियल डिफरेंशियल। इसमें x और कैपिटल Y की वैल्यू डाल दीजिए बस, तो ये आ गया a into e power the kx, b into e power the k by 4 into y, ठीक है। तो हमारे पास a into b is considered as again another constant, say d, ठीक है, which is equal to be into the e x plus y by 4 into k, ठीक है। तो ये हमारे पास निकला है। अब मुझे अभी काम करना है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो जो भी कंडीशन हमारे पास गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी? हमारे पास गिवन था u of 0 y is equal to b, हमारे पास गिवन था u of 0 y is equal to be 8, सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए इसे। तो हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया जो हमारे पास वैल्यूज थी। अभी तो ये डी निकालना है आपने, क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई अप दिस वन, ये हमारे पास फॉर्मेशन निकल आया। अब 3 माइनस के बाय 4 को आप फिर से एक अनदर कांस्टेंट ले लीजिए, where k1 is equal to be minus 3 minus k by 4। तो ये d की वैल्यू निकल आई। अब ये जो d की वैल्यू आई है वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो uxy आपके पास क्या निकल आया? is equal to be, we have 8 into e power y into k1 into e power x plus y by 4 into the k, ठीक है। and further you can be further simplify up this part and you will get the required solution। इसको further simplify कर सकते हैं आगे। so this is the way you can find out। हाँ जी बेटा प्लीज। 8 e power kx plus 3y, हाँ 8 into e power kx plus 3y also whatever minus 3y के। oh yes sir, minus। हाँ so we get the, इसको further simplify कर लीजिए तो we get the answer of 8 into e power the kx minus 3y, we get the answer। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। So this is the way we can simplify and using up a product method, और यही टेक्निक हम अब लगाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा ये मेथड में एक बात का याद रखना है कि ये मेथड तभी काम करेगा अगर ये उसका सॉल्यूशन है। अगर ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, इन दैट केस इट विल नॉट बी वर्कड वेल, ठीक है। तो जनरली ये कुछ खामियां हैं, बट एनी हाउ जो हम मेथड डिस्कशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, हीट इक्वेशन वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल के अंदर, सॉरी वन डायमेंशनल हीट में और वन डायमेंशनल वे में, दोनों में ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। सो वी विल in the next lecture we will try to be get up the solution of heat equations using of this technique, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि how we can get the solution with the help of a heat equation, कि heat equation का solution कैसे निकालना है using up with this and how the Fourier series help us, ठीक है। Yeah, any query? Sir, हाँ जी बेटा। sir, in the sessional test which happened on Friday, sir, 2 to 3 questions, sir, from the derivation part. Derivation part मतलब